Participants are introduced with our chief guest. Dr. Satish Soni is an associate professor in Department of Commerce and Management at Government Postgraduate College, Hamirpur, Himachal Pradesh. He has done MCom, MPhil, PhD and postgraduate diploma in labor law and labor welfare. He has been in the teaching profession for last 23 years. He has presented more than 30 research papers in national and international journals. 25 students of MPhil in Commerce, 23 students of MBA project of IGNOU, and 5 students had completed PhD under his supervision. Welcome, sir, to this webinar. Dr. Satish Soni. And our keynote speaker, Dr. Ram Singh, has been in the teaching profession for last more than 16 years. He did MCom, MPhil, PhD, MBA, and currently working as assistant professor at Government College, Bangana, Una, Himachal Pradesh. Earlier, he has worked as assistant professor in one of our Constituent College, Sikhwala, Shri Muktsar Sahib. He has supervised more than 50 projects at postgraduate level. He has supervised 6 MPhil research scholars. 2 candidates have completed PhD under his supervision. He has presented more than 35 research papers in different national and international conferences. He has also delivered lectures as a source person in various conferences. Welcome, sir. I, on the behalf of Shahid Udham Singh, Punjab University Constituent College, I welcome both of our chief guests and keynote speaker to this webinar. Dr. Ram Singh. Dr. Ram Singh ji, kindly sir अपना mic unmute कर लो. Ram sir, mic unmute कर लो. सर माइक तो रेड कलर ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇਗਾ. हाँ जी सर. Can I start? Now, Anji sir. Now I would like to invite Dr. Ram Singh to enrich the participants with his profound knowledge in this field. Dr. Ram Singh, Yeah. you can start. Okay. Okay. First of all, am I audible to all of? Yes, sir. Okay. So, Honorable Vice Chancellor, Punjab University, Chandigarh, Professor Rajkumar ji, Principal of Shahid Udham Singh, Punjab University, Constituent College, Guru Harsarai, Dr. Anna Sharma ji, Chief Guest of today's webinar, Dr. Satish Soni ji, Organizer of this seminar, Professor Nishi and other faculty member of this college. Good morning, all of you. First of all, I will congratulate the entire organizing team who are conducting such type of webinar series from last many days and sharing valuable thoughts of different speakers on different topics in this critical time. I extend my deep gratitude to Dr. Anna Sharma, principal of this college, who gave me this opportunity to share my views on today's webinar topic, Atmanirbhar Bharat Abhiyan, a realistic approach to make India self-reliant. This topic basically this today time related with each and every human being. So I will try to present this topic that it will give you some productive result, and I will touch all the issues which can cover this whole topic. So आज का जो ये वेबिनार का विषय है आत्मनिर्भर भारत अभियान, आत्मनिर्भर भारत अभियान को प्राप्त करने का एक यथार्थवादी दृष्टिकोण। तो ये आत्मनिर्भर भारत क्या है? आत्मनिर्भर भारत अभियान जो है इसके क्या आयाम हैं
और भारत सरकार आदरणीय प्रधानमंत्री ने जो 12 मई 2020 को जो 20 लाख करोड़ रुपए का पैकेज दिया है, वो किस हद तक भारत को आत्मनिर्भर बनाने में कामयाब होगा। आज जिस तरह से हमें जानकारी है कि वर्तमान समय में हम कोविड-19 की एक वैश्विक महामारी से जूझ रहे हैं। जब ये कोविड-19 महामारी आई तो भारत सरकार ने WHO और भारत सरकार के जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ है उसकी गाइडलाइन के अनुसार एकदम पूरी कंट्री में लॉकडाउन कर दिया, ताकि जो ये कोविड-19 नाम का ये पैंडेमिक है इसका संक्रमण हम रोक सकें। 2 महीने तक लगभग ये लॉकडाउन रहा और इससे ज्यादा सरकारें लॉकडाउन नहीं रख सकती थी। तो उसके बाद सरकार ने लॉकडाउन में भी ये ढील दी और लोगों से ये आह्वान किया कि अब हमें इस कोरोना के साथ जीना होगा। पहले सरकार ने हमारी सुरक्षा के लिए कानून हमें ये आज्ञा नहीं देता था कि हम मार्केट में जाएं, हम अपने घरों में रहें। तो सरकार ने भी ये आह्वान किया कि अब आपको अपने कार्यक्षेत्र में भी जाना है, अपने काम भी करने हैं और ये जो कोरोना का संक्रमण है इससे आपको बचना भी है। और बचने के लिए अब आपने स्वयं इस प्रकार से अपनी जीवन शैली को चेंज करना है कि आप कोविड के संक्रमण से अपने आप को बचा सकें। ये जो कोविड-19 नाम का जो पैंडेमिक हमारे पूरे विश्व में फैला हुआ है, इस महामारी ने आज पूरे विश्व को झंकोर कर रख दिया है और हमारे समाज में भी लोगों के मन में एक साइकोलॉजिकल फियर हो गया है कि ये मान लो हम कहीं जाते हैं तो हमारे मन में ये डर रहता है कि कहीं कोविड से हम संक्रमित ना हो जाएं, या ये कोविड कब खत्म होगा। इस तरह के कई तरह के प्रश्न हमारे मन में आ रहे हैं। तो WHO की जो एक तरह की स्टेटमेंट है, उन्होंने कहा है कि अभी ये कोविड-19 इस देश से जाने वाला नहीं है और हम अपनी गतिविधियों को अब इससे ज्यादा रोक भी नहीं सकते हैं, इसीलिए हमें इसके साथ जीना होगा। कैसे जीना है, इसके लिए जो हमें जिन चीजों का ध्यान रखना चाहिए, जो प्रिकॉशंस लेनी चाहिए, वो प्रिकॉशन लेके हम आगे चले। भारत के प्रधानमंत्री ने भी हमारे देश के लोगों को इस कोविड-19 के फियर से बाहर निकालने के लिए, उनको मोटिवेट करने के लिए जैसे ये पैकेज अनाउंस किया और उसके बाद उन्होंने ये विश्वास दिलाया कि भारत सरकार, हर तरह की राज्य सरकारें, हर तरह का एडमिनिस्ट्रेशन आपके साथ खड़ा है और हम इस कोविड को रोकने के लिए पूरी कोशिश करेंगे। और इस तरह से उन्होंने एक हमारे समाज में एक नई ऊर्जा का प्रवाह करने की कोशिश की है। आज का जो ये विषय है इसको मैं आपके समक्ष 3 पार्ट्स में रखूंगा और इस विषय को रखने के लिए मैं कुछ एक स्लाइड्स भी आपके सामने अभी प्रेजेंट करूंगा। तो जो ये हमारा just of minutes, I'm just sharing the slides. तो जो आज का हमारा ये विषय है इसके 3 पार्ट हैं। एम आई ऑडिबल? पवन जी, एम आई ऑडिबल? यस सर, बिल्कुल सर, कैरी ऑन सर। स्क्रीन ओके, स्लाइड्स आर विजिबल? जी सर। ओके, तो फर्स्ट पार्ट है हमारे इस टॉपिक का वर्ल्ड हिस्ट्री ऑफ वायरस, सेकंड है आत्मनिर्भर भारत अभियान एंड थर्ड वन पार्ट है एनालिसिस ऑफ स्पेशल इकोनॉमिक पैकेज टू रिवाइव इकोनॉमी।
कोविड-19 को डिस्कस करने से पहले मैं आपके समक्ष जो है वायरस की जो एक वर्ड हिस्ट्री रही है उसको आपके समक्ष रखना चाहता हूं। उसको आपके समक्ष रखने का जो मेरा पर्पस है वो एक पर्पस है कि आज की युवा पीढ़ी जैसे ये सोच रही है कि ये वायरस हमें ही क्यों झेलना पड़ रहा है, हम ही इस वायरस से क्यों झेल रहे हैं। ऐसा कई बार जो नकारात्मक नेगेटिव थॉट है वो हमारे दिमाग में आ जाता है। तो इस नेगेटिव थॉट हमारे दिमाग में ना आए और ये जो महामारी है हमारे समाज में आती है, हेलो हेलो राम सर, आपकी आवाज नहीं आ रही। राम सर, मेरी आवाज आ रही है? हेलो राम सर, आपकी आवाज नहीं आ रही। पवन जी, राम सर म्यूट हो चुके हैं, उन्होंने अनम्यूट करो जी। एक्चुअली सर हमारे पास ये अनम्यूट की ऑप्शन नहीं आती, ये राम सर को खुद ही करना पड़ेगा। राम सर ही करेंगे, राम सर ही जी करेंगे। सर। राम सर, हेलो, राम सर आपकी आवाज नहीं आ रही थी। अभी मेरी आवाज आ रही है? जी जी, अभी आ रही है आवाज। ओके 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 ओके, ठीक है। सर आपका ना माइक म्यूट हो जाता है। जब मैं प्रेजेंटेशन चला रहा हूं तो माइक म्यूट हो रहा है? नहीं सर, पहले तो सही चल रहा था, बाद में थोड़ा म्यूट हो गया था। चलो, जब म्यूट होगा तो आप मुझे बीच में रोक सर देना, ठीक है? आप थोड़ा ना स्क्रीन पे टच करके थोड़ा देखते रहना, कई बार नेटवर्क प्रॉब्लम से ना म्यूट हो जाता है, तो आप ठीक है, प्लीज ठीक मतलब अनम्यूट कर लेना। ठीक है, ठीक है, ठीक जी है, सर, ठीक है। जी सर। ओके। ओके, ओके पवन जी, हाँ जी नाउ सर। स्क्रीन इज विजिबल? जी जी सर, कंटिन्यू सर। ओके ओके। तो मैंने आपको जो हमारी वर्ड हिस्ट्री में जिसका पहले वायरस का उल्लेख मिलता है वो है हमारे पास एंडोनाइन वायरस, जिसने रोमन साम्राज्य को खत्म कर दिया। और एक कहावत भी हमें सुनने में आती है कि यूनान, मिस्र, रोम सब मिट गए जहां से, कुछ ऐसी है हमारी कि मिटते नहीं जहां से, ऐसे। उसके बाद सेकंड वायरस जो है वो जस्टिनियन नाम का वायरस आया 542 आफ्टर डिगेट में, जिसने बेजेंटाइन जो एम्पायर था उसको खत्म कर दिया। फिर उसके बाद 1346 से लेके 1353 के जो हमारा कालखंड है इसको ब्लैक डेथ पीरियड के नाम से जाना जाता है, और इसको ब्लैक डेथ वायरस का भी नाम दिया गया। इसने हमारे पूरे यूरोप को जो था वो डिस्ट्रॉय किया,
और इसके बाद यूरोप का पुनर्जागरण हुआ। उसके बाद फिर 1918 और 20 में स्पेनिश फ्लू नाम का वायरस आया। हेलो हेलो पवन जी, कुछ डिस्टर्बेंस आ रही है? मेरी आवाज सुन रही है? सर एक्चुअली किसी ने अपना माइक अनम्यूट किया था। सर जी जी सर, किसी ने अपना माइक अनम्यूट किया था। मेरी सब पार्टिसिपेंट से ये निवेदन है कि वो काइंडली अपने माइक को म्यूट रखें। पवन जी ठीक है मेरी आवाज? जी सर बिल्कुल सर, कंटिन्यू सर। ओके ओके। तो ये जो स्पेनिश फ्लू नाम का वायरस आया, ये लगभग पहले हम प्रथम विश्व युद्ध का उसको झेला, उसके बाद ये वायरस आ गया। और इस वायरस ने, कहते हैं कि उस समय तो भारत में अंग्रेजों का राज था, तो अंग्रेजों ने अपने आप को बचाने के लिए तो कई तरह के उपाय किए, लेकिन भारत की जनता के ऊपर उनको बचाने के लिए कोई बहुत ज्यादा सुरक्षात्मक ऐसे कदम नहीं उठाए। और ऐसा उल्लेख मिलता है कि उस समय भारत में इस फ्लू से लगभग 1 करोड़ लोगों की जान गई थी, और इस फ्लू ने पूरे वर्ल्ड में लगभग 35% जो पॉपुलेशन थी उसको अफेक्टेड किया था। हेलो एक बेसिक पवन जी अपने आप को आप म्यूट कर लें, आपकी आवाज इधर आ रही है। इजराइल के एक्सटर्नल फॉरेन मिनिस्टर्स हैं, उन्होंने ये कहा है कि समाज में ये महामारियां आती हैं और जो समाज है इनको सामना करता है, और सामना करने के पश्चात नई मानव सभ्यताओं का विकास होता है, परिवर्तन आता है। भारत में भी इसी टाइम पीरियड में जो है वो गांधी मूवमेंट शुरू हुई, और उसके बाद फिर उस मूवमेंट ने भारत को जो है आजादी देने तक अपना जो है पूरा सहयोग किया। मैंने आपके सामने ये जो वायरस की हिस्ट्री थी उसको इसलिए रखा ताकि हमारी युवा पीढ़ी को ये जानकारी हो कि ये प्रकृति का एक नियम है। जब थोड़ा प्रकृति में असंतुलन होता है तो उसको संतुलन करने के लिए प्रकृति ये अपना रूप जो है वो दिखाती है। इसके बाद अभी आपका 1920 में लगभग इसके 100 साल के बाद ये हमारे पास जो है कोविड-19 नाम का ये पैंडेमिक आया। तो आज के समय में जैसे ये महामारी जो है वो काफी वैश्विक रूप ले चुकी है, तो हमें इससे कोई डरने वाली बात नहीं है। हमें इसका सामना करना है, इसको परास्त करना है, और परास्त करके जब जो हमें विजय मिलेगी तो उसका एक अलग सुखद अनुभव होगा। तो इस तरह से मैंने आपके समक्ष सबसे पहले वायरस की जो वर्ल्ड हिस्ट्री है उसके बारे में आपके समक्ष रखा। देन उसके बाद हमारे पास आता है आत्मनिर्भर भारत अभियान। इसके भी 3-4 ये मेन इश्यूज हैं जिनको मैं आपके समक्ष रख रहा हूं। सबसे पहला है कॉन्सेप्ट ऑफ आत्मनिर्भर भारत अभियान। ये जो आत्मनिर्भर भारत अभियान है इसका कॉन्सेप्ट क्या है? तो इसके जब हम कॉन्सेप्ट की बात करते हैं तो हमारे पास 2 तरह से इसके विचार हैं। एक इसका आर्थिक पक्ष है और इसका एक ब्रॉडर पक्ष है जिसकी प्रधानमंत्री जी ने बात की है। अगर हम अर्थशास्त्र की दृष्टि में आत्मनिर्भर भारत अभियान को डिफाइन करें तो इसका अर्थ है कि ऐसा राष्ट्र जो अपने जरूरत की वस्तुएं और सेवाएं हैं उसका उत्पादन स्वयं करने में सक्षम हो, उसको आत्मनिर्भर भारत अभियान कहा जाता है। यह ऐसा राष्ट्र जिसकी अर्थव्यवस्था में जितने भी उसके क्षेत्र हैं, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी सेक्टर्स, और जितने भी उसके संसाधन हैं, उन संसाधनों का इस तरह से संचालन करे कि उसको दूसरे देशों के ऊपर आश्रित ना रहना पड़े, और जितने भी अर्थशास्त्र के हमारे इकोनॉमिक इंडिकेटर हैं उनमें हम एक्सेलेंट परफॉर्मेंस करें। ऐसा जो आर्थिक जानकार हैं वो इसको डिफाइन करते हैं। तो आत्मनिर्भर भारत की ऐसी आर्थिक पक्ष की ऐसी एक परिभाषा है। जो इसका ब्रॉडर एस्पेक्ट्स है जिसकी बात प्रधानमंत्री जी ने की है, उन्होंने कहा है कि आत्मनिर्भर भारत अभियान में भारत की आत्मा वासुदेव कुटुंबकम की अवधारणा छिपी हुई है। वसुदेव कुटुंबकम का अर्थ है कि ये जो सारी वसुंधरा है, ये जो सारी पृथ्वी है, ये एक कुटुंब है, एक परिवार है, और हम पूरे विश्व के सुख के लिए, पूरे विश्व के कल्याण के लिए हम प्रार्थना करते हैं, कामना करते हैं। तभी तो हम जब प्रार्थना करते हैं हम कहते हैं सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामये, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। अर्थात हम आत्मनिर्भर भारत अभियान के माध्यम से
जो हमारी एक अर्थ केंद्रित अर्थव्यवस्थाएं थी उनको हम मानव केंद्रित अर्थव्यवस्थाओं में परिवर्तन करना चाहते हैं, और मानव केंद्रित अर्थव्यवस्थाओं में परिवर्तन करके अपने देश का विकास करते हुए, पूरे विश्व का विकास करते हुए, विश्व का मंगल करते हुए, इस विकास का हर उस व्यक्ति को फायदा मिले जो विश्व के अंतिम पायदान के ऊपर बैठा हुआ है। तो ऐसा जो है वो आत्मनिर्भर भारत अभियान है। कई लोगों ने ये मत दिया कि आत्मनिर्भर भारत अभियान मीन्स, यस सर, am I audible clearly? पवन जी, am I audible? Yes sir, yes Okay, sir. ठीक है, ओके ओके ओके। तो कई लोगों का यह मानना था कि आत्मनिर्भर भारत अभियान से हम अपनी इकोनॉमी को जो है वो श्रिंक कर देंगे, जो है हम अपनी इकोनॉमी को आइसोलेट कर देंगे, रेस्ट्रिक्ट कर देंगे। ऐसा नहीं है। जो लोग आज ग्लोबलाइजेशन की बात करते हैं, हम इसकी बात हजारों वर्ष पहले करते थे। हम पूरे विश्व को एक परिवार मानते हैं और पूरे विश्व के कल्याण और सुख की हम कामना करते हैं। तो ये हमारा आत्मनिर्भर भारत अभियान जो है उसका अर्थ है। इस आत्मनिर्भर भारत अभियान के इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जो प्रधानमंत्री ने जिन 5 पिलर्स की बात की है, ये 4 मेन इसके इश्यूज हैं। सबसे पहले मैं उन 5 पिलर्स के ऊपर आऊंगा। तो सबसे पहला जो पिलर है वो है इकोनॉमी। आज इस कोविड-19 ने अगर सबसे ज्यादा किसी चीज को प्रभावित किया है तो वो इकोनॉमी ने किया है। आज की डेट में बहुत सी जो डेवलप्ड कंट्री हैं, विकसित राष्ट्र है, उनकी ग्रोथ माइनस में चली गई और भारत की स्थिति आज 0 पे है। तो इस अवस्था में, और हम बात कर रहे हैं आत्मनिर्भर भारत अभियान की, जैसे कि प्रधानमंत्री जी ने जब 2014 में आए थे तभी एक लक्ष्य दिया था कि हम अपनी इकोनॉमी को जो है $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाएंगे, जो आजकल 2.7 पे चल रही है। इसको हमने अगर 500 लाख करोड़ की इकोनॉमी बनाना है तो कैसे बनाना है, ये कोई सपना नहीं है। उस समय जब ये विचार आया तो बहुत सी मैगजीनों में इसके ऊपर आर्टिकल लिख के आए कि भारत 500 लाख करोड़ की इकोनॉमी कैसे बनेगा। और खासकर जो अब ये कोविड का इकोनॉमी के ऊपर जितना प्रभाव पड़ा है, इतना विश्व युद्धों में भी नहीं पड़ा था जितना अब हमारी इकोनॉमी जो है वो शटर्ड हुई है। तो प्रधानमंत्री ने कहा कि हमें अगर अपने इस लक्ष्य को प्राप्त करना है तो हमें इंक्रीमेंटल ग्रोथ रेट से ग्रोथ नहीं करनी पड़ेगी, हमें क्वांटम रेट से अपनी इकोनॉमी में ग्रोथ करनी पड़ेगी। अगर क्वांटम रेट से हमने ग्रोथ करनी है तो उसके लिए हमारा वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए। और ये जो इकोनॉमी और इंफ्रास्ट्रक्चर है, ये दोनों आप दूसरे में के बीच में, दोनों के बीच में डायरेक्ट रिलेशनशिप है। इकोनॉमी बढ़ रही है तो मीन्स हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है। इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होगा तो वो इकोनॉमी को मोमेंटम देगा। तो उन्होंने जो दूसरा पिलर, जो दूसरी हमारे इस आत्मनिर्भर भारत अभियान का स्तंभ है वो है इंफ्रास्ट्रक्चर। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हमारा वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए। थोड़ा सा मैं आपको इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में बताऊं। इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा 2 तरह का होता है, एक सोशल होता है, इकोनॉमिक होता है। सोशल्स में हमारे पास स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल्स आते हैं, और इकोनॉमिक में हमारे पास जो है बैंक, इंश्योरेंस इंस्टीट्यूशंस, रोड, रेलवे एटसेट्रा सब कुछ जो है। तो हमने जो ये लक्ष्य रखा है उसके लिए हमें अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को सुधारना होगा। और इसको सुधारने के लिए ये ठीक है, अब कोविड आया, हमने भारत के प्रधानमंत्री ने ये हमें पैकेज दिया और इसके पैकेज से लोगों को पता लगा, लेकिन काम वो 2014 से कर रहे हैं। उन्होंने जब आए थे तभी से एक NIP का, नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर करके एक प्रोजेक्ट है, उसको शुरू कर दिया है और उसके ऊपर काम चल रहा है। तीसरा जो हमारे पास पिलर है वो है सिस्टम। आज हम 21वीं सेंचुरी में रह रहे हैं, 21वीं शताब्दी में है। और एक समय वो था जब भारत के प्रधानमंत्री कहते थे कि अगर हम 1 रुपया अपने समाज को किसी वेलफेयर के लिए भेजते हैं तो वो 15 पैसे मिलता है। मीन्स 85% की लीकेज हो जाती थी। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हमारा जो सिस्टम है वो मॉडर्न टेक्नोलॉजी बेस्ड होना चाहिए। मॉडर्न टेक्नोलॉजी बेस्ड सिस्टम के लिए भी हमने 2014 से ही काम करना शुरू कर दिया। 2015 में प्रधानमंत्री जनधन योजना लेके आए। 40-50 करोड़ लोग जो थे उनके उसमें खाते खुले। उसके बाद जो आधार कार्ड है वो चल रहा है, और साथ में जो हमारे पास मोबाइल फोन, ये 3 चीजें जो हैं, ये एक उन्होंने त्रिनीति दी है जिसके माध्यम से हम इस जितनी भी पॉलिसीज है उनको इंप्लीमेंटेशन करेंगे।
समस्या क्या होती है, पॉलिसीज अच्छी होती हैं लेकिन उनकी इंप्लीमेंटेशन नहीं हो पाती है सही ढंग से। और इंप्लीमेंटेशन के लिए हमें एक ऐसा सिस्टम चाहिए जो ट्रांसपेरेंट हो, इकोनॉमिक हो, प्रॉम्प्ट हो। तो उन्होंने इस जैम पॉटी को, अभी आप देखते हैं कि आज की डेट में अगर हमने, चाहे वो स्कॉलरशिप की बात है, किसान निधि, सम्मान निधि की बात है, या जनधन अकाउंट में जो अभी पैसे भेजे हैं उसकी बात है, वो जैसे ही केंद्र से योजना बनी और अगले दिन जितने भी बेनिफिशियरी थी उनके खाते में वो पैसे पहुंच गए, जो कि जिसको कि हम आज डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर का नाम भी देते हैं। आज आपने देखा होगा कि इसी सिस्टम के माध्यम से हमारी सब्सिडी कम हुई है। सब्सिडी कम हुई इसका अर्थ ये नहीं है कि लोगों को सब्सिडी देना कम किया है, लेकिन जो पहले फेक सब्सिडी जाती थी उसको रोका है। हमने सुने हैं कि एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में स्कॉलरशिप के कितने स्कैम हमारे सामने आए हैं। एक एक बच्चा 4-4 जगह से जो था वो स्कॉलरशिप को अप्लाई करता था क्योंकि उसकी पहचान नहीं होती थी। हमने उसके खाते को इससे के साथ जोड़ दिया, आधार कार्ड के साथ जोड़ दिया। आधार कार्ड एक यूनिक नंबर है जो एक व्यक्ति का नंबर होगा। अगर वो दूसरी जगह अप्लाई करेगा तो उसको आधार कार्ड अप्लाई जो है नंबर वहां पे लिखना पड़ेगा। इस तरह से हमने काफी हद तक इस सिस्टम को जो है वो मॉडर्नाइज किया है। अगला जो स्तंभ है वो है डेमोग्राफिक डिविडेंड। आज भारत पूरे विश्व में जनसंख्या की दृष्टि से दूसरा राष्ट्र है और हमारी ये जो पॉपुलेशन है ये हमारे लिए समस्या ना बने, ये हमारी स्ट्रेंथ बने। इसके लिए जरूरत है भारत के नौजवान को रोजगार देने की। भारत के नौजवान को रोजगार देने के लिए जरूरत है स्किल की। अगर हमारा नौजवान स्किल्ड होगा तो उसको रोजगार मिलेगा और वही जो पॉपुलेशन है वो हमारे लिए डेमोग्राफिक डिविडेंड बन जाएगा। और आपने देखा है कि ये भी स्किल डेवलपमेंट पिछले सालों से 4-5 सालों से स्किल डेवलपमेंट केंद्र से अलग मंत्रालय, स्टेट गवर्नमेंट में अलग, इसके ऊपर भी कंटिन्यू हम काम कर रहे हैं कि सबसे पहले हमें अपने नौजवान को जो है वो स्किल्ड करना पड़ेगा। एक बात मैं और आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। आज की डेट में अगर आप भारत की जो लोग हैं उनकी अगर औसत आयु निकालेंगे तो वो 27 वर्ष है। नेट पे आप चेक कर लेना। और चाइना की जो है वो 37 वर्ष औसत आयु है और बाकी कई कंट्री हैं उनकी औसत आयु को 40-42 इतने साल हैं। देश बूढ़े हो चुके हैं, लेकिन हमारे पास आज की डेट में ऐसी जनसंख्या है, जो ऐसा जनसंख्या का वर्ग है जो हमारा वर्क फोर्स है। जरूरत है इस वर्क फोर्स को स्किल्ड करने की और एक उनको काम देने की। अगला जो हमारे पास इसका मेन स्तंभ है वो है डिमांड। पूंजीवादी अर्थव्यवस्थाओं में बेसिकली जो हमारे इकोनॉमिक्स, मॉडर्न इकोनॉमिक्स के फादर हैं एडम स्मिथ, वो कहते हैं कि जो डिमांड एंड सप्लाई है ये एक इकोनॉमी के 2 इनविजिबल हैंड्स हैं। मींस अगर हमने इकोनॉमी में मोमेंटम लाना है तो हमें अपनी डिमांड को इंक्रीज करना पड़ेगा। और मैं नहीं समझता कि भारत से ज्यादा कहीं पे डिमांड इंक्रीज हो सकती है। हाँ, ये अलग विषय है कि भारत में लोगों की जो क्रय शक्ति है वो है कि नहीं, क्योंकि क्रय शक्ति से डिमांड जनरेट होगी। तो क्रय शक्ति को जनरेट करने के लिए या तो हम लोगों को रोजगार दें या उनको सब्सिडी दें। ये सरकार के ऊपर डिपेंड है कि क्या करेंगे। सब्सिडी देंगे तो लोग निठल्ले बनेंगे और अगर हम उन लोगों को जो है रोजगार देंगे तो वो एक पूरी एनर्जी के साथ इस देश के जीडीपी में कंट्रीब्यूट करेंगे। तो इस तरह से जो ये हमारा एक डिमांड सप्लाई का चक्र है, लोगों के पास रोजगार होगा तो लोगों के पास आय आएगी तो वस्तुओं की डिमांड बढ़ेगी तो उसकी प्रोडक्शंस बढ़ाने के लिए जो प्रोड्यूसर्स हैं वो काम करेंगे, उसकी सप्लाई बढ़ेंगे। तो इस तरह से ये ट्रेड साइकिल जो है चलेगा। तो ये 5 स्तंभों की उन्होंने बात की है और ये सारे एक दूसरे के साथ रिलेटेड हैं। डिमांड बढ़ती है तो उसका डेमोग्राफी के कारण हमारी डिमांड बढ़ रही है और डिमांड के कारण हमारी इकोनॉमी बढ़ रही है और इकोनॉमी के कारण हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर वर्ल्ड क्लास हो रहा है। ये सारी चीजें एक दूसरे के साथ रिलेटेड हैं, कोई भी आइसोलेट नहीं है। उसके बाद जो उन्होंने अगली बात की वो बात की 4L ऑफ आत्मनिर्भर भारत अभियान। 4L की बात की है। वो 4L क्या है? अर्थशास्त्र की भाषा में हम इन्हीं 4L को प्रोडक्शंस के रिसोर्सेज या इनपुट्स बोलते हैं, जैसे लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप। और जो उन्होंने 2 लैंड, लेबर वैसे ही हैं और तीसरा लिक्विडिटी और लॉ है। तो भारत में क्या है?
लैंड की भी कोई कमी नहीं है, एरिया वाइज भी भारत विश्व में 7वें नंबर पे है। लेकिन जो लैंड एक्विजिशंस के लॉ हैं, आज अगर मान लीजिए एक व्यक्ति ने कहीं पे इंडस्ट्री लगानी है तो उसको लैंड अलाउड करने में ही डिपार्टमेंट 6-6 महीने लगा देता है, तो वो कब इंडस्ट्री लगाएगा। उन्होंने कहा कि अगर किसी इंडस्ट्रियलिस्ट को लैंड लेनी है तो उसको विद इन आवर्स जो उसकी फॉर्मेलिटीज है उसको पूरा करके लैंड अलाउड की जाए। और भारत सरकार ने क्या काम किया कि भारत में कितनी ऐसी सरकारी लैंड है, इसका पता ही नहीं कोई कितनी सरकारी लैंड है। तो उन्होंने एक डिपार्टमेंट को काम दिया कि पूरे भारत में सरकारी लैंड कितनी है उसका आप लैंड बैंक बनाओ। क्योंकि अगर हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर किसके ऊपर बनेगा, जमीन के ऊपर बनेगा। जब कहीं इंडस्ट्री लगाने की, कहीं हॉस्पिटल कॉलेज खोलने की बात आती है, हॉस्पिटल खोलने की बात आती है, रेलवे लेने की बात आती है, एयरपोर्ट की बात आती है, तो हमारे पास लैंड की प्रॉब्लम आ जाती है। तो लैंड एक्विजिशन जो है वो गवर्नमेंट और लोगों के हितैषी होना चाहिए, ऐसा भी इसमें जो है वो प्रयास किया। दूसरा हमारे पास आता है लेबर। जो लेबर का कॉन्सेप्ट आपको पता है, भारत में जो है वो लेबर की कमी नहीं है, सबसे अधिक मात्रा में कोई संसाधन है तो वो लेबर है। लेकिन इस लेबर के जो हमारे लॉज हैं ये भी बड़े कॉन्ट्राडिक्टरीज हैं, विरोधाभासी हैं। कुछ लॉज जो है वो इंडस्ट्रीज के इसमें बेनिफिट देते हैं, तो ऐसे लॉ बनाए जाएं जिससे कि इंडस्ट्रियलिस्ट और जो लेबर है दोनों का उसमें म्यूचुअल जो है बेनिफिट हो। अभी जो लॉकडाउन हुआ तो जो हमारी जितने भी लेबर लॉज थे, स्टेट गवर्नमेंट के पास भी सब्जेक्ट रहता है, तो इस लेबर लॉज को किसी ने सिंप्लीफाई किया है, तो वो स्टेट है आपकी उत्तर प्रदेश। सबसे पहले उसने अपने लेबर लॉज को सिंप्लीफाई किया। फिर बात आती है लिक्विडिटी की। आज हमारी इकोनॉमी में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आई है तो वो लिक्विडिटी की आई है, जिसको हम कैपिटल कहते हैं। कैपिटल में इसमें एक और अगर इसका फैक्टर ऐड कर दिया जाए टेक्नोलॉजी, क्योंकि कैपिटल का अर्थ है लिक्विडिटी प्लस टेक्नोलॉजी। तो लिक्विडिटी बढ़ाने के लिए मैं इस कॉन्सेप्ट पे अभी बाद में इसको और डिटेल में बताऊंगा जब पैकेज को डिफाइन करूंगा कि किस तरह से भारत सरकार ने अर्थव्यवस्था में लिक्विडिटी को बढ़ाने के लिए क्या काम कर रही है। लॉज हमारे पास आते हैं, जितने भी आज हमारे देश में इतने लॉ हैं अननेसेसरी। अगर किसी ने कोई यूनिट शुरू करना हो तो वो एक ऑफिस से दूसरे ऑफिस में फाइल लेने जाता रहता है, जब तक उसने यूनिट शुरू करना होता तब तक उसकी एनर्जी वैसे खत्म हो जाती है। लॉज को सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जो कॉन्सेप्ट है उसको यहाँ पे इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा, ताकि और मान लीजिए कोई इंडस्ट्रीज यूनिट शुरू कर देता है तो उसको कभी अपना टैक्स कंप्लाइंस पूरा करना है, कभी लेबर कंप्लाइंस पूरा करना पड़ना है, कभी कौन से कंप्लाइंस, उसकी तो एनर्जी इसी में रहती है कि मैंने कौन सी अभी एडमिनिस्ट्रेशन कार्रवाई पूरी करनी है। वो अपने मेन प्रोडक्शन के ऊपर तो फोकस नहीं कर पाता है। तो आत्मनिर्भर भारत अभियान में उन्होंने कहा है कि ये 4 जो एल हैं इनकी भी बड़ी भूमिका रहेगी। फिर उन्होंने बात की वोकल फॉर लोकल। ये जो वोकल फॉर लोकल का कंसेप्ट है ये भारतीय अर्थव्यवस्था को आत्मनिर्भर बनाने में जो है इसका बहुत महत्वपूर्ण योग होगा। और आज ये जो हमारी संकट की घड़ी है, हमारे इस संकट की घड़ी में हमारे स्थानीय व्यापारियों ने हमारी रोजमर्रा की जरूरतों को पूरा किया है। आज भारत में स्थानीय से अंतरराष्ट्रीय स्तर तक डिमांड एंड सप्लाई की जो चेन टूटी हुई है उसको सुदृढ़ करने की एक शक्ति या पोटेंशियल है भारत की अर्थव्यवस्था में। क्योंकि आज जो स्थिति है, आज चीन जो है वो वर्ल्ड प्रोडक्शन का हब है। बहुत सी मल्टीनेशनल कंपनियां जो हैं वो चीन में प्रोडक्शन करती हैं, उनके प्रोडक्शन यूनिट हैं। परंतु चीन का जो इस कोविड-19 को फैलाने में जो उसका पूरा रोल रहा है और इस कोविड-19 ने जो पूरी दुनिया को मौत के मुंह में झोंक दिया है, अब इन मल्टीनेशनल कंपनी ने भी चीन से पलायन करने की एक तरह की योजना बना ली है। हमारे पास ये मौका है कि हम इन इंटरनेशनल मल्टीनेशनल कंपनी को भारत में यूनिट लगाने के लिए प्रेरित करें, जिसके लिए हमें अपना इंफ्रास्ट्रक्चर वर्ल्ड क्लास करना होगा। यह तभी संभव है जब हमारे देश में ग्रामीण स्तर पर इंडस्ट्री होगी। हमारी यह इंडस्ट्री कितनी सक्षम है जो हमारे देश की डिमांड को तो पूरा करेगी, पर साथ में उसमें इसकी इतनी कैपेसिटी है कि वो बर्ड की डिमांड को भी, बर्ड की जो डिमांड सप्लाई चेन है उसको भी सुचारू रख सकती है। लेकिन इस स्तर का बनने के लिए हमें अधिक प्रोडक्शन करने की जरूरत है। जैसे जैसे
कोई मान लीजिए कोई लोकल इंडस्ट्रीज को यूनिट शुरू करता है तो उसका प्रोडक्शन का जो साइज होता है वो कम होता है, परंतु जैसे जैसे वो प्रोडक्शन ज्यादा करता जाता है तो वो इकोनॉमी ऑफ साइज की जो डिफरेंट बेनिफिट्स हैं उनको अवेल करता है। तो ये मौका हमें अपने इंडस्ट्रीज को देना होगा। जब हम अपने लोकल के प्रोडक्ट को खरीदेंगे ही नहीं तो उसको कहां से प्रेरणा मिलेगी, जब उसका मार्केट में प्रोडक्ट बिकेगा ही नहीं। तो भारत का सिटीजन, भारत का नागरिक होने के नाते आज हमने जब मजबूरी में अपने लोकल जो हमारे व्यापारी थे उनसे अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति की है, ये मजबूरी नहीं है, हमारा पैशन होना चाहिए कि जब हमारी अर्थव्यवस्था से कोविड-19 हट जाएगा तब भी हम लोकल का प्रोडक्ट खरीदेंगे, और यही लोकल प्रोडक्ट को जब हम खरीदेंगे इसका जो साइज ऑफ प्रोडक्शन बढ़ेगा तो यही लोकल प्रोडक्ट नेशनल और इंटरनेशनल ब्रांड बनेगा। जो आज नेशनल और इंटरनेशनल ब्रांड है वो भी कभी लोकल प्रोडक्ट होते थे। तो इस तरह से जो वोकल फॉर लोकल का हमने कॉन्सेप्ट दिया, मुझे लगता है कि भारत को आत्मनिर्भर बनाने में ये एक मील का पत्थर साबित होगा। और वोकल फॉर लोकल के लिए मैं आपको एक एग्जांपल कोड करना चाहूंगा कि वोकल फॉर लोकल के लिए भारत का नागरिक का व्यवहार कैसा होना चाहिए, ये हमें जापान से सीख लेनी चाहिए। जापान को वर्ल्ड वार में हिरोशिमा नागासाकी जब उसके ऊपर अणुबम परमाणु बम फेंके गए तो उसको तहस नहस कर दिया। वहां आज भी जब वो खेती करते हैं तो वो उनकी जो खेती होती है वो उतनी अच्छी नहीं होती है, लेकिन वो खेती करते हैं। वहां पे जैसे किसी जगह जो है वो संतरे का उत्पादन किया जाता है, तो संतरे का जो उत्पादन किया है बाद में जो संतरे का टेस्ट होता है वो थोड़ा कड़वा होता है। कोई अमेरिका का व्यापारी गया वहां घूमने, उसने देखा यार ये कैसा संतरा यहाँ पे लोग बेचते हैं, ये तो कड़वा है। तो उसने गवर्नमेंट के साथ कहा कि भाई हम आपको सप्लाई करेंगे संतरा, आप हमारा संतरा खाइए। गवर्नमेंट ने कहा ठीक है आप करो सप्लाई, लोगों को व्यापारियों को सप्लाई किया। और जब व्यापारी मार्केट में खरीदने बेचने लगे उस प्रोडक्ट को तो मार्केट में उसका कोई ग्राहक ही नहीं, किसी ने नहीं खरीदा। कहते हमारा जो प्रोडक्ट है हम उसी को खरीदेंगे, उसको नहीं खरीदेंगे तो हमारे जो लोग एग्रीकल्चर है उनको प्रेरणा नहीं मिलेंगी, और प्रेरणा नहीं मिलेगी तो हमारी वो जो जमीन है वो बंजर हो जाएगी। तो ऐसी हमें सीख लेनी है जापान से। जापान के लोगों का लोकल प्रोडक्ट के लिए जो भाव है, तो इसलिए लोकल प्रोडक्ट को खरीदना भी है और उसका प्रचारक भी हमें बनना है और उसको हमने मार्केटाइज भी करना है। और सरकार का भी मेरा एक अपना मानना है कि सरकार का रवैया भी वोकल फॉर लोकल के लिए कैसा होना चाहिए। तो चीन का एग्जांपल मुझे बड़ा अच्छा लगता है। चीन ने आज तक भी गूगल को अलाउ नहीं किया है, ट्विटर को अलाउ नहीं किया, इंस्टाग्राम को अलाउ नहीं किया है। वो अपने लोगों को बोलते हैं कि आप रिसर्च कीजिए और जो सॉफ्टवेयर है वो डेवलप कीजिए, फॉरेन का जो ये इसको हम अलाउ नहीं करेंगे। टिकटॉक को देखिए, टिकटॉक जो है वो चाइना का एप्लीकेशन था, चाइना का एप्लीकेशन है, भारत ने उसको बैन किया। टिकटॉक चाइना का सॉफ्टवेयर है लेकिन उसके अगर ग्राहक देखें तो सबसे ज्यादा भारत में है। भारत में है नहीं, सबसे ज्यादा बेकार लोग यहाँ बैठे हुए हैं, इसीलिए टिकटॉक पे लगे रहते हैं। तो हमें वोकल फॉर लोकल के लिए समाज की और राष्ट्र की किस तरह की सरकारों की भूमिका होनी चाहिए, इस तरह का मैंने आपके सामने एग्जांपल रखा। उसके बाद मैं आता हूं जो हमारा पैकेज प्रधानमंत्री ने अनाउंस किया। इस पैकेज में बेसिकली कोशिश की गई है कि जिन लोगों को इस कोविड-19 के कारण सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ा है तो उसको ध्यान में रखते हुए उन्होंने रिलीफ देने की कोशिश की है। तो मैंने आपके सामने ये 4 मेन एरियाज रखे हैं, जिसमें पहला आपका आता है एमएसएमई, एनबीएफएस, कॉन्ट्रैक्टर्स, रियल एस्टेट, माइग्रेंट वर्कर्स, एग्रीकल्चर, रिफॉर्म इन कोर इंडस्ट्री। सबसे पहले मैं आपके पास आता हूं एमएसएमई। आज की डेट में एमएसएमई क्या है मैं थोड़ा सा इसके ऊपर आपको बताऊंगा। माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस, आज इनका भारत की जीडीपी में 35% कंट्रीब्यूशन से है। भारत को ये 13 करोड़ लोगों को रोजगार देते हैं। भारत के एक्सपोर्ट में 50% कंट्रीब्यूशन से है। और सबसे ज्यादा प्रभाव हुआ लॉकडाउन का तो हमारी माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज इंडस्ट्री के ऊपर। आज जो चाइना उछलता है वो किस बेस के ऊपर उछलता है? इन्हीं माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस के ऊपर। आज उसके घर घर में ये माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस हैं, गांव गांव में छोटी छोटी इंडस्ट्री लगी हुई है। तो इसको रिवाइव करने के लिए सरकार ने क्या किया, एक तो सबसे पहले उन्होंने 3 लाख करोड़ का क्वालिटेटिव ऑटोमेटिक लोन माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस को किया। ये क्या है बेसिकली कि आपको जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं
लगभग हमारे पास 6 करोड़ की यूनिट हैं, उनको ये कहा कि अगर आपको पैसे की जरूरत है तो आपको बैंक जो है किसी तरह की आप फीस जमा करो, ये फॉर्मेलिटी पूरा करो, कोई फॉर्मेलिटी आपको पूरी करने की जरूरत नहीं है। आप बैंक में जाइए और वहां से आप लोन ले सकते हैं, और जो भी आपकी इंडस्ट्री के ऊपर इस कोविड का प्रभाव पड़ा है उसको आप रिवाइव कीजिए। और दूसरा था हमारे पास, अब एक तो वो आगे की जो अच्छे चल रहे हैं माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटर, अब दूसरे ऐसे हमारे एंटरप्राइजेस हैं माइक्रो जो कि बीमार हैं, बीमार उद्योग हैं, जिन्होंने बैंकों से पैसा ले रखा है लेकिन बैंकों को पैसा देने के वो सक्षम नहीं है, तो उनका एनपीए है। एनपीए है तो बैंक उनको पैसा नहीं देंगे, लोन नहीं देंगे। सरकार ने बोला हमें इन्हें भी शुरू करना है, इनको भी रिवाइव करना है, और इनको रिवाइव करने के लिए 20,000 करोड़ रुपए का जो है उनको प्रोविजन रखा। सरकार ने बैंकों को कहा कि आप इन जो सिक एमएसएमईज है उनको आप लोन दीजिए, उनको पैसा दीजिए, उनके पैसे की गारंटी हम लेते हैं, अगर वो पैसा डूबेगा तो बैंक्स को जो है वो पैसे की पेमेंट सरकार करेगी। ये इसमें प्रोविजन डाला गया। रीडिफाइंड एमएसएमई क्या है, मैं अगली स्लाइड में आपको बता रहा हूं। ग्लोबल टेंडर टू बी डिसअलाउड 200 करोड़। भारत के इंडस्ट्रिस्ट को प्रमोट करने के लिए भारत सरकार ने 200 करोड़ तक के जो टेंडर थे उनको डिसअलाउ कर दिया। इसको थोड़ा सा मैं सिंपल शब्दों में समझाता हूं कि मान लीजिए एक इंडिया की कंपनी है और एक चाइना की कंपनी है, भारत सरकार उनको पेन मैन्युफैक्चरिंग का टेंडर देना चाहती है, तो भारत के किसी इंडस्ट्रियलिस्ट ने उसको 10 रुपए पर पेन की ग्लोबल टेंडर मैंने क्लियर कर दिया। इसके बाद हमारे पास आता है माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस, इसको हमने रीडिफाइंड किया। पहले माइक्रो स्मॉल मीडियम जो इंटरप्राइजेस होते थे, इनकी जो कैटेगरी होती थी, जो इन्वेस्टमेंट सीलिंग होती थी, वो मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर के लिए अलग अलग होती थी। भारत सरकार ने उस इन्वेस्टमेंट सीलिंग का जो क्राइटेरिया था उसको दोनों के लिए ही अब जो है एक जैसा कर दिया और पैरामीटर 2 कर दिए। माइक्रो में ऐसे यूनिट आएंगे जिनकी प्लांट एंड मशीनरी में इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ की होगी और टर्नओवर जो है वो 5 करोड़ की होगी। और स्मॉल में ऐसे हमारे पास यूनिट आएंगे जिसमें जो है इन्वेस्टमेंट जो है वो 10 करोड़ की होगी और टर्नओवर 50 करोड़ की होगी। और मीडियम में ऐसे यूनिट आएंगे जिनकी जो इन्वेस्टमेंट है प्लांट एंड मशीनरी में वो 20 करोड़ और टर्नओवर 100 करोड़। ये क्यों किया? बेसिकली क्या था कि जो हमारे ये माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस काम कर रहे थे, इनके पास पुरानी टेक्नोलॉजी के ऊपर ये काम कर रहे थे, तो अगर ये नई टेक्नोलॉजी लगाते हैं तो इनकी प्लांट एंड मशीनरी की जो इन्वेस्टमेंट सीलिंग लिमिट है उससे ऊपर चले जाते हैं, और उससे ऊपर चले जाते हैं तो सरकार जैसे माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस को चलाने के लिए बहुत से इंसेंटिव देती हैं, वो इंसेंटिव इनको नहीं मिलते हैं। तो इन्होंने सरकार को ये काफी दिनों से प्रयास कर रहे थे कि आप इनको रीडिफाइंड कीजिए ताकि हम अपने आप को थोड़ा मॉडर्नाइज कर सकें। तो इस तरह से भारत सरकार ने ये भी इस बार जो है वो एक रिफॉर्म किया है माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस को रीडिफाइन करके। अगला हमारे पास विषय आता है जो हमारे नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी है या हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज हैं या म्यूचुअल फंड्स हैं, ये भी बुरे दौर से गुजरे थे, इनको भी लिक्विडिटी की समस्या चल रही थी। तो इसके लिए सरकार ने 30,000 करोड़ रुपया जो है वो इसके लिए रखा कि आप भी अपने काम को शुरू कीजिए, और बैंकों को कहा कि इनको आप पैसा दीजिए, इनकी गारंटी हम देते हैं। फिर आता है आपका जो पावर जनरेशन कंपनीज होती हैं जिनको डिस्कॉम्स कहा जाता है, तो इन कंपनीज को सरकार ने 90,000 करोड़ रुपया जो है वो इन कंपनी के लिए रखा। बेसिकली ये जो पावर ट्रांसमिशन कंपनी है, इनकी पहले ही जो है वो बहुत सा पावर जनरेशन कंपनी के पास आउटस्टैंडिंग चल रहा था, और दूसरा ये लॉकडाउन आ गया, लोग बिल नहीं जमा कर पा रहे थे, उसके कारण उनके पास पैसा नहीं था, तो इनमें भी लिक्विडिटी की समस्या थी। लिक्विडिटी को ठीक करने के लिए इनके लिए 90,000 जो करोड़ रुपया जो है वो उसमें प्रोविजन किया गया। उसके बाद जो कॉन्ट्रैक्टर्स होते हैं जो सरकारी प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम करते हैं, बिल्डिंगें बनाते हैं, रोड बनाते हैं, ब्रिज बनाते हैं, उनका एक टाइम पीरियड होता है। तो जब लॉकडाउन आ गया तो वो भी काम नहीं कर पाए, तो सरकार ने कहा कि आपका भी जो जो आपका प्रोडक्ट किसी भी प्रोजेक्ट को पूरा करने का जो पीरियड है उसको 6 महीने के लिए एक्सटेंड किया जाता है, क्योंकि
जो प्रोजेक्ट रीडा के अंतर्गत आते हैं, अगर उन प्रोजेक्ट को कोई कॉन्ट्रैक्टर टाइमली पूरा नहीं करता है तो उसमें क्या होता है कि उनको हैवी पेनल्टी पे करनी पड़ती है, उनको भी इसमें रिलैक्स किया गया। फिर हमारे पास आता है 50,000 करोड़ लिक्विडिटी थ्रू टीडीएस एंड टीसीएस। लोगों के पास पैसा जाए, इंडस्ट्रीज के पास पैसा जाए, लोगों के पास पैसा जाए, जो लोग एम्प्लॉई हैं, तो 50,000 करोड़ रुपए का प्रोविजन रखा उन्होंने टीडीएस में। ये भी लिक्विडिटी है। ये कैसे है? जैसे मान लीजिए कोई बंदा टैक्स ब्रैकेट में आता है और वो 10% टैक्स जो है वो सरकार को दे रहा है। सरकार ने उसके टीडीएस, क्योंकि सरकार को जो जब भी कोई व्यक्ति काम करता है तो जो भी एम्प्लॉयर होता है वो उसका टीडीएस काटता है। मान लो 10% है तो 10% है, पर जो जो उसकी सैलरी के हिसाब से जो टीडीएस का रेट स्टैंड करता है। सरकार ने कहा है कि लोगों के हाथ में इन हैंड पैसा ज्यादा जाए, इसलिए उन्होंने क्या किया कि इस टीडीएस को 25% कम कर दिया। मीन्स जो 10% के हिसाब से टैक्स दे रहे थे वो 7.5% के हिसाब से जो है वो एम्प्लॉयर जो है उसका टीडीएस काटेगा। दूसरा टीसीएस आता है। जो लोग, जिन लोगों की इनकम, मान लीजिए इंश्योरेंस एजेंट का काम कर रहे हैं, उनके पास रेंट की इनकम आ रही है या कोई और इनकम आ रही है, या जैसे बैंक से कोई इनकम आती है, तो उनका टीसीएस काटा जाता है। उनको भी रिलैक्स किया गया कि टीसीएस भी जो है वो इसी तरह से 25% जो है वो कम किया जाएगा। तो लोगों के पास कैश आएगा, लिक्विडिटी बढ़ेगी मार्केट में। और इसी के साथ जो हम रिटर्न फाइल करते हैं, जितने भी डिफरेंट तरह के चाहे बिजनेसमैन है या सैलरीड पर्सन हैं, उनको भी रिटर्न फाइल करने के लिए जो है वो जो टाइम पीरियड है उसको 30 नवंबर तक बढ़ा दिया गया है। अगला विषय आता है हमारे पास ₹2500 करोड़ ईपीएफ सपोर्ट फॉर बिजनेस एंड वर्कर फॉर 3 मंथ्स। 3 महीने पहले जैसे ये अप्रैल मई जून के लिए थी, अब इस सपोर्ट को जो है वो 3 महीने और बढ़ा दिया गया। ये सपोर्ट बेसिकली है क्या? आंकड़े आप सब लोगों ने देखे होंगे, लेकिन बेसिकली इनका कॉन्सेप्ट क्या है ये मैं आपके सामने थोड़ा रखने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये 2500 करोड़ के माध्यम से क्या है कि जिन एम्प्लॉइज का ईपीएफ कटता है, मान लीजिए एक एम्प्लॉय का 12% ईपीएफ कट रहा है और एम्प्लॉयर भी 12% डालता है तो 24% बन जाता है। ऐसे एम्प्लॉय जिनकी सैलरी 15,000 रुपए से कम है और उनका जो ईपीएफ है वो कौन करेगी? सरकार कंट्रीब्यूट करेगी। तो कुल मिला के अगर एक व्यक्ति की जो है वो 10,000 रुपये सैलरी है तो 24 रुपया ईपीएफ में सरकार उसका कंट्रीब्यूट करेगी। दूसरा हमारे पास ऐसे एम्प्लॉय आ जाते हैं जिनकी सैलरी जो है 15,000 से ज्यादा है, उनके ऊपर ये कानून अप्लाई नहीं होगा, उनको ये पैकेज से रिलीफ नहीं मिलेगी। उनके लिए क्या किया? अब उनके पास भी इन हैंड कैश जाए, इसके लिए उनका जो ईपीएफ का जो कंट्रीब्यूशन रेट था 12%, उसको रिड्यूस करके 10% कर दिया। जैसे 20,000 रुपया सैलरी है तो पहले वो 12% के हिसाब से 24 रुपए दे रहा था, तो उसको अब 2,000 रुपया जो है वो ईपीएफ में कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा। मीन्स इन हैंड कैश उसके पास आएगा मार्केट में लिक्विडिटी को बढ़ाने के लिए। फिर हमारे पास आते हैं माइग्रेंट वर्कर। आज के समय में अगर कोई वर्ग सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ है तो ये वर्कर है। हमारे देश का बड़ा विरोधाभास है कि एक तरफ तो हमारे देश में वो वर्ग है जो लॉकडाउन पीरियड में सोच रहा था कि हम कब घर से बाहर निकलेंगे, घूमने जाएंगे, मॉल में पिक्चर देखेंगे, और दूसरा वो वर्ग है जब ये लॉकडाउन हुआ तो इन बेचारों को खाने के लिए भी खाना नहीं मिल रहा था। हमने जब न्यूज आए तो उसमें देखा कि एक परिवार उधर महाराष्ट्र से बैल के ऊपर चला, बैल खत्म हो गया तो उस बैलगाड़ी को चलाने के लिए कभी वो उसका घरवाला बैलगाड़ी को चलाए, कभी बेटा घरवाली चलाए। एक और बच्चा था 12 साल का, वो भी कहीं से पैदल चला 100 किलोमीटर, लेकिन जैसे ही उसने अपने घर के समीप जाना था तो 6 किलोमीटर पहले बेचारे की मौत हो गई। एक वो वर्ग है। सबसे ज्यादा इस वर्ग को जो इतनी हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर को खड़े करते हैं, इनको खाने की समस्या आ जाती है। तो भारत सरकार ने इनको भी रिलीफ करने की कोशिश की है कि एक तो लगभग 80 करोड़ लोगों को इसका फायदा रहेगा, जिसमें कि हर वर्कर को 5 किलो अनाज और 1 किलो जो है वो उसको दाल जो है वो दी जाएगी। और इसको भी उन्होंने बढ़ा दिया गया है ताकि कम से कम एक कोशिश की है उन्होंने कि कुछ हद तक उसको खाने की समस्या ना आए। और कोई भी वर्कर अभी क्या किया उन्होंने, अपने गांव में जाए, प्रधान के पास जाए, रजिस्ट्रेशन करवाए और वो जो कोऑपरेटिव सिस्टम है, पीडीएस सिस्टम है, वहां से वो अनाज ले ले। जो महिलाएं थी जिनने जनधन अकाउंट्स करवाए थे उनको सरकार ने 500 रुपया डाला गया। इसी तरह से जिन महिलाओं को उज्ज्वला गैस योजना के अंतर्गत सिलेंडर मिले थे उनको फ्री में जो है उनका पेमेंट नहीं ली जाएगी। ये इसके ऊपर काम चल रहा है। अब जो लोग शहरों में काम करते थे गांव में चले गए तो
गांव में भी तो उतने अभी उनके पास संसाधन नहीं है, तो गांव में वो भूखे ना मरे इसके लिए सरकार ने अपना जो मनरेगा का बजट है वो पहले 60,000 करोड़ रुपए का था, उसको 1 लाख करोड़ रुपए कर दिया, और उसमें जो दिहाड़ी है वो 182 रुपए से बढ़ा के 202 रुपए कर दिया, और उसमें जो वर्किंग डेज है उसको भी बढ़ा दिया ताकि वो भूखे ना मरे। और साथ में सरकार सबसे बड़ा जो अभी स्टेप सरकार ने एक जो रिफॉर्म किया वो किया है वन नेशन वन राशन कार्ड का। अभी तक क्या है कि मान लीजिए मैं हिमाचल का हूं, तो मेरा गांव जो है जहां पे मेरा राशन कार्ड बना हुआ है, मैं वहीं से जो है वो अपना राशन ले सकता हूं। लेकिन अब सरकार ऐसा राशन कार्ड लगभग ये है कि मार्च 2021 तक ये सब क्लियर हो जाएगा, ऐसे राशन कार्ड बनेंगे कि आपका राशन कार्ड कहीं का भी है, आप जहां रहते हैं वहां के आप कोऑपरेटिव डीपी में जाइए और उस पीडीएस सिस्टम के अंतर्गत अपना अनाज ले सकते हैं। तो मुझे लगता है इसका काफी फायदा होने वाला है। फिर हमारे पास आता है एग्रीकल्चर सेक्टर। ये वो क्षेत्र है जिसमें हमारा इनपुट हमेशा ज्यादा रहता है, आउटपुट कम होता है। नो डाउट इस जो कोविड-19 है इसमें एग्रीकल्चर के ऊपर, एग्रीकल्चर हमारा निखरा है, इसमें इसके ऊपर इसका बहुत ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ा है, लेकिन एग्रीकल्चर को मजबूत करने की बड़ी जरूरत है। सरकार ने 11 कदम टोटल लिए हैं, जिसमें से 8 कदम जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के रिगार्डिंग है, और जो 3 जो उसके मेजर्स हैं वो जो है वो गवर्नमेंट रिफॉर्म्स हैं। तो इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए नाबार्ड जो है वो 1 लाख करोड़ रुपया गांव में जो है वो खर्च करेगा, और गांव के लोग जो खेती करते हैं तो उनका रेवेन्यू सोर्स जो है वो खेती है, लेकिन कई बार आपको पता है कोई भी क्लामिटी आती है तो फसल तबाह हो जाती है, खाने के जो है उनको समस्या हो जाती है। तो यहाँ पे सरकार ने फोकस किया है कि आप अपने जो आपके रेवेन्यू रिसोर्सेज है उनको आप डाइवर्सिफाई कीजिए, गाय पालन कीजिए, मधुमक्खी पालन कीजिए, ठीक है, इस तरह से रेशम पालन कीजिए, ये डिफरेंट तरह के जो हैं हम, ताकि अगर हमारी खेती नष्ट भी हो जाती है तो हम दूध बेच के जो है कम से कम अपना गुजारा कर सकें, शहद बेच के गुजारा कर सकें। एनिमल हस्बेंड्री के लिए उन्होंने 15,000 करोड़ रुपए का बजट रखा है, जो लोग इसमें काम करेंगे उनको उसमें सब्सिडी दी जाएगी। बी कीपिंग के लिए 500 करोड़ है। हर्बल कल्टीवेशन को प्रमोट करने के लिए भी इस बार बजट रखा है 40,000 करोड़ का। आज की डेट में जर्मनी जो है वो हमारी आयुर्वेदिक और यूनान पद्धति का आज की डेट में बड़ा उसका टॉप मोस्ट कंट्री है, जबकि ये आयुर्वेद और यूनान का भी हमारी चिकित्सा की पत्तियां हुआ करती थी। भारत सरकार ने हर्बल जो हमारे ये उपचार व्यवस्था है इसको ठीक करने के लिए जैसे आयुष मंत्रालय खोला है, तो भारत सरकार के लोगों को भी कि वो हर्बल कल्टीवेशन करें। हर्बल जो हमारी जड़ी बूटियां हैं, ये सारी जो जर्मनी है वो हर्बल जड़ी बूटियां कहाँ से लेके जाता है, हिमालयन रेंज से, और हिमालयन रेंज भारत के बिल्कुल नजदीक है। तो हम हर्बल्स के ऊपर काम करें, इसके लिए ये पैसा जो है उसमें रखा गया है। फिर ऑपरेशन ग्रीन के लिए 500 करोड़। ऑपरेशन ग्रीन बेसिकली होता क्या है, जैसे हम खेतों की सिंचाई करते हैं तो हमारा जो खेत जो होता है, मान लीजिए नहर के नजदीक है, उसको पानी मिल जाता है, नदी का पानी मिल जाता है, बाकी को समस्या आती है। तो आजकल जैसे इजराइल सिस्टम है, ड्रिप सिस्टम वहां पे है, उसमें पानी की खपत कम होती है, और जो बीज है उसको अंकुरित होने में भी वो ज्यादा बढ़िया उसकी प्रोडक्शन होती है। जैसे मान लीजिए आप सिंपल इरीगेशन से अगर आपकी 1 हेक्टेयर में जो है वो 10 क्विंटल गेहूं तैयार हुई है, तो उससे 17 और 18 क्विंटल जो हम गेहूं ले सकते हैं। और साथ में ऑपरेशन ग्रीन के अंतर्गत ही हमें और भी ऐसे कई ऐसे मेथड्स हैं जिसके अंतर्गत हम, जैसे जीरो बेस फार्मिंग का है। जीरो बेस फार्मिंग का अर्थ है कि किसान के पास पैसा नहीं है तब भी खेती कैसे करनी है। तो उसके लिए सरकार ने क्या कहा कि गांव गांव में जो है वो फार्मर कंसल्टेंसी सेंटर खोले जाएंगे, जो कि फार्मर को गाइड करें कि किस तरह से आपने खेती करनी है। उसके साथ एग्रीकल्चर क्षेत्र में जो एग्रीकल्चर की सबसे ज्यादा डिमांड होती थी वो ये होती थी कि एक किसान की जब फसल आती थी तो वो अपनी फसल को अपनी स्टेट की मंडी में बेच सकता है। इस रेस्ट्रिक्शन को सरकार ने हटा दिया। सरकार ने कह दिया, ऑनलाइन सरकार ने एक पोर्टल बना दिया है जिसमें पूरे भारत की मंडियों को उसके साथ कनेक्ट किया जा रहा है। आप पवन जी, एम आई ऑडिबल? Yes, sir, you are audible. ओके। तो आप उस फॉर्म को भरिए और भारत की जिस भी मंडी में आपको अपनी फसल का अच्छा रेट मिल रहा है वहां पे आप बेच सकते हैं। ये बड़ा भारत के किसान, भारत के कृषि को उठाने के लिए बड़ा, क्योंकि भारत के मैक्सिमम पॉपुलेशन कृषि के ऊपर आधारित है। कृषि को मजबूत किए बिना हम इकोनॉमी को मजबूत नहीं कर सकते हैं, इकोनॉमी को डेवलप नहीं कर सकते हैं। इसीलिए हमें इस सेक्टर को मजबूत करना पड़ेगा। दूसरा क्या था कि जैसे हम स्टॉक करते थे फार्म प्रोड्यूस को, उसकी भी लिमिट थी।
जैसे गेहूं आया, प्याज आया, तो किसान एक लिमिट तक उसको स्टॉक कर सकता था। अब वो अपनी जो उसके स्टोरेज है उसकी कैपेसिटी को भी बढ़ा सकता है। सरकार ने उस लॉ को भी जो है वो मॉडिफाई किया है। फिर हमारे पास आता है कोर इंडस्ट्री। भारत की जो 8 कोर इंडस्ट्रीज हैं, इसमें उन्होंने रिफॉर्म्स किए हैं। सबसे पहले रिफॉर्म्स किया उन्होंने कोल सेक्टर से में। कोल एनर्जी का सबसे बड़ा हमारा एक संसाधन है। और अभी क्या चल रहा था कि अभी भी जो भारत सरकार कोल कंपनीज को कोल एक्सट्रैक्ट करने का टारगेट देती थी, वो कंपनियां उसको पूरा नहीं कर पा रही थी। तो सरकार ने कहा कि एक तो हम इसमें फिर जो है वो प्राइवेट इसमें ठेकेदार को बीच में इन्वॉल्व करेंगे, और अगर आप उस टारगेट को अचीव नहीं करेंगे, हम उस टारगेट को अचीव, और जो प्रॉफिट का शेयर होगा उसमें से फिर इन प्राइवेट जो कॉन्ट्रैक्ट पे हमने जिनको रखा है उनको उसमें से पेमेंट करेंगे। और साथ में अभी भी हमारे 50 ऐसे ब्लॉक्स हैं कोल के जिनकी ऑप्शन नहीं होगी, या उनके के ऊपर भी काम किया जाएगा। और कोल सेक्टर में जो है वो ट्रिपल P मॉडल के ऊपर अब काम किया जाएगा, क्योंकि इसको एफिशिएंसी की सुधारने की जरूरत है। दूसरा आपका आता है मिनरल सेक्टर, जिसमें आपके एल्यूमिनियम, बॉक्साइट एक्सेट्रा, इसके भी लगभग 500 ब्लॉक्स हैं जो अभी जो अलॉटेड नहीं है, उनको भी ट्रिपल P मॉडल के ऊपर जो है प्राइवेट पार्टीज को उसमें इन्वॉल्व किया जाए, क्योंकि प्राइवेटाइजेशन के बिना, भारत के लोगों को इसमें इन्वॉल्व किए बिना हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं, उसको भी लॉ किया गया। फिर आता है हमारे पास डिफेंस। आज की डेट में हमारी डिफेंस में क्या पोजीशन से है कि हम जो हैं डिफेंस में एक भी चीज को खुद प्रोड्यूस नहीं करते, एक भी वेपन को खुद प्रोड्यूस नहीं करते हैं, ये स्थिति है। तो डिफेंस में भारत सरकार जो हमारे पास इसका फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है 49 से 67% किया है। तो 69% से क्या होगा कि जब फॉरेन की कंपनी यहाँ पे हमारे यूनिट लगाएंगी, तो यूनिट लगाने के बावजूद हम हमारे देश में प्रोडक्शन करेंगी। मान लीजिए अभी हमने, जैसे अभी 3 साल पहले हमने एक रशिया के साथ प्रोजेक्ट शुरू किया है, तो रशिया के साथ प्रोजेक्ट शुरू करने के बाद अगर हम 100 एक राइफल तैयार करते हैं तो 50 रशिया लेके जाएगा, तो 50 हम भी बेचेंगे। इसलिए इसमें हमने FDI को बढ़ाया है। फिर हमारे पास आता है एयर स्पेस मैनेजमेंट। भारत में एयरपोर्ट की कमी है, तो ये भारत इसके ऊपर भी शुरू से काम कर रहा है कि भारत में हम 100 एयरपोर्ट तैयार करेंगे, और 12 जो एयरपोर्ट है वो तैयार हो गए हैं, और इनके ऊपर भी जो है वो ट्रिपल P मॉडल के ऊपर काम चल रहा है। फिर हमारा स्पेस आता है, ऑटोमिक आता है। स्पेस में हम सभी लोगों ने देखा है कि इसरो ने बहुत अच्छा किया है, और उसकी परफॉर्मेंस ऐसी है। अभी जब हमने चंद्रयान 2 को लॉन्च किया, तो अमेरिका ने कहा था कि इसी अगर चंद्रयान को हमने लॉन्च करना होता तो उसकी लागत जो है वो अमेरिका में इसकी 1.5 गुना होती। भारत में 1 करोड़ आई है तो वहां पे 1.5 करोड़ होती। और अमेरिका जैसे, अमेरिका की नासा एजेंसी ने इसरो से 2 जो सैटेलाइट है वो खरीदे हैं। तो जब हम इसमें भी अगर प्राइवेट पार्टी को एक लिमिट तक अलाउ करेंगे, तो हम सैटेलाइट जो हैं और बनाएंगे, और जो भी हमारे पड़ोसी देश हैं, चाइना को छोड़ के वियतनाम, फिलीपींस, श्रीलंका, ये सारी कंट्रियां जो है हमारे से सैटेलाइट को खरीदेंगी। तो इस तरह से जो ये रिफॉर्म्स था, इसको मैंने आपके समक्ष ब्रीफली रखने की कोशिश की है। तो ये जो सारा पैकेज है, अगर इसका हम आकलन करें तो कुल मिला के 70% इस पैकेज में लिक्विडिटी को बढ़ाने की कोशिश की गई है, और 30% ओवरऑल जो है वो डायरेक्ट जो क्रेडिट रिलीफ है वो दिया गया है। और तीसरा, जो कई पिछले सालों से हमारी इंडस्ट्री में रिफॉर्म की जरूरत थी, वो रिफॉर्म्स किए गए हैं। तो ये जो सारा विषय मैंने आपके सामने रखा, अंत में मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं कि ये जो मेरा आज का लेक्चर है वो सार्थक होगा यदि हम अपनी जरूरत की वस्तुओं के लिए लोकल लेवल पे वस्तुओं का उपयोग करें। और जो आज हम देखते हैं, तो हमारे जो रोजमर्रा की जरूरतें हैं उसमें 60% गुड्स जो है वो चाइना की है। तो चाइना के ऊपर अपनी निर्भरता को कम करें, और जो भारत के प्रधानमंत्री ने ये आत्मनिर्भर भारत का जो लक्ष्य हमें दिया है उसको पूरा करें। आत्मनिर्भर भारत कोई आज नई चीज नहीं है, पुराने समय से हम आत्मनिर्भर थे। हमने इतिहास में पढ़ा है, भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। तो अगर हमने पुनः इस आत्मनिर्भर भारत के इस लक्ष्य को प्राप्त करना है, अपने जो हमारा भारत को सर्वश्रेष्ठ बनाने का जो एक लक्ष्य है, तो भारत के हर नागरिक को भारत सरकार के साथ जो है कंधे से कंधे मिला के काम करना पड़ेगा, तभी हम भारत को विश्व गुरु बनाएंगे। तो इस तरह से मैंने आज का वक्तव्य आपके सामने रखा। जय भारत।
हेलो। हेलो। हाँ मैडम निशी, तो वक्तव्य में जो है मैंने यस सर। हाँ, मेरा वक्तव्य पूरा हो गया है। हाँ सर, sorry, this is to inform you our principal sir Dr. Anna Sharma is not able to join us due to bad weather conditions. Okay. Our chief guest, now I would like to invite our chief guest Dr. Satish Soni to share his experience with the participants. Dr. Satish Soni, kindly unmute yourself. Okay, madam ji. Am I audible, madam ji? Yes sir, you Hello? are audible. Yes. Sir, please Honorable Vice, Honorable Vice Chancellor, Dr. Ajmarji, Principal Dr. Anand Sharma, Organization, Associate Professor and others. I am heartily thankful to you that you have organized such seminar on this burning topics. And keynote speaker Dr. Ram Singh, who has spoken a lot on this burning topic. Really, it is very good topic in the present era. Dr. Ram Singh gives details regarding history of COVID. As you know, history repeats itself. Dr. Ram Singh rightly said. And after that, he expressed 5 pillars of economy to make India self-reliant. To make India self-reliant, he expressed his view regarding different factor of productions, land, labor, capital, organization, and for skill enhancement. He expressed his view to involve the young generation to impart them training and technological upgradation to increase the demand. If our demand increases, then what happens? We have to set up a lot of industries. I think there is some connectivity issue with Dr. Satish Soni. Dr. Ram Singh. Hello. Am I? Yes, sir. Yes, sir. You are audible. And after that, Ram Singh expressed our Honorable Prime Minister's views that local is vocal. And there is also proverb in English. There is a proverb in English that is blood is thicker than water. Apna apna praya praya. If we adopt these policies, then we really become self-reliant. And other is earn and learn. It will lead that our balance of trade is unfavorable, and balance of payment is also unfavorable for the last many years. To make the balance of trade or balance of payment favorable, we have to make self-reliance. We have to produce goods in our country. As you know that other proverb in English that is necessity is the mother of invention. Before COVID-19, we import ventilators from the foreign countries, which were very costly. Now we find that ITI Roorkee make ventilator at very low cost. इससे पूर्व भी we can make this
instruments. But why? Because we never felt need. So necessity is the mother of invention. जो भी होता है वो अच्छे के लिए होता है. इसमें हो सकता है इंडिया का भला हो. कहावत ये है कि घर का जोगी जोगड़ा, बाहर का जोगी सिद्ध. हमें इसको उल्ट करना है कि घर का जोगी सिद्ध, बाहर का जोगी जोगड़ा. क्योंकि हम जो बाहर की जो गुड्स हैं, फॉरेन कंट्री के गुड्स, उनको हम प्रेफर करते हैं. हम अपनी कंट्री को गुड्स को प्रेफर नहीं करते हैं, उनको हम अपने आप ही इंफीरियर बोलते हैं. फॉरेन गुड्स को हम प्रेफर करते हैं, तो हम सेल्फ रिलायंट नहीं बन सकते हैं. तो डॉक्टर राम सिंह ने बहुत अच्छा कहा, बहुत डिटेल में डिस्कस किया इन वेरी शॉर्ट पीरियड. और डिफरेंट पैकेजेस, our Prime Minister have announced different packages on 12 May 2020, 20 lakh crore for different sector of economies. SMSC को डिफाइंड किया, एग्रीकल्चर सेक्टर को रिवाइव किया, वुमेन एम्पावरमेंट हो, चाहे माइग्रेंट लेबर्स हो, ऑपरेशन रिच की बात हो, ऑपरेशन ग्रीन की बात हो, जीरो वेस्ट फार्मिंग की बात हो, सभी पर हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने थ्रस्ट किया कि हमारा देश आत्मनिर्भर हो. जो हम पहले हमें गोल्ड इंडिया कहते थे, इंडिया इज ए गोल्डन स्पैरो, हमें कहते हैं कि इंडिया फिर गोल्डन स्पैरो की तरफ लीड हो. क्योंकि हम फॉरेन गुड्स पर डिपेंड होंगे तो डिपेंडेंसी मेड स्लेव, इंडिपेंडेंसी मेक्स अस फ्री. सो वी हैव टू मेक, इफ वी वांट टू मेक डिपेंडेंट ऑन अस, सो we have, that we can make self-reliance. So self-reliance, India has a talent. It can make the best product. We need to make our supply chain stronger to become an Atmanirbhar Bharat. So in these words, I conclude the remarks and hope in future to organize such webinar on such burning topics to make India self-reliant. Thanks a lot. Thanks for patience listening. Thank you, Madam Ji. Thank you, sir. Okay, Madam Ji. Thank you, sir. We are really enlightened with your knowledge and presence. Dr. Ram Singh, we have some queries from participants. Queries. Dr. Ram Singh. Yes, ma'am. Sir, we have some queries from our participants. Okay. Can I share with you? Yes, ma'am. Why not? One is from Jitendra Shukla from Chhattisgarh. आत्मनिर्भरता शिक्षा के क्षेत्र में कैसे होगा, जबकि आज भी हम विदेश की शिक्षा नीति को समाहित कर रखे हैं? उनका ये क्वेश्चन है. ठीक है, ठीक है. तो इसका ऐसे है कि हम, जैसे अभी इनका जो सवाल है कि शिक्षा के क्षेत्र में हम आत्मनिर्भर कैसे होंगे. हाँ जी. देखिए, अभी अगर आप शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं तो आपके ध्यान में होगा कि भारत सरकार ने एक नई शिक्षा नीति बनाई है, और उस शिक्षा नीति में जो अभी हमारी पॉलिसीज में जो कमी है, या जो भी हमें लगता है कि इसमें जो फॉरेन का कंटेंट है, क्योंकि जब भारत गुलाम था तो काफी जो चीजें हैं उसी में से चली आ रही हैं. मैं कह ले जो शिक्षा पद्धति हमारी चली आ रही है, तो उस पद्धति को सुधार करने के लिए सरकार ने पिछले 5-6 साल से काम कर रही है. और वो जो पॉलिसी है, आपके सामने जब वो पॉलिसी आएगी तो काफी आपको उसमें जो है आपको ऐसे सुधार देखने को मिलेंगे जो जिस शिक्षा पद्धति के ऊपर जो है हम आत्मनिर्भर भारत की तरफ जाएंगे. हेलो. हेलो. जी मैम. Thank you, sir. Another query from Taman Walia from Amritsar. उनका क्वेश्चन है कि एम्प्लॉयमेंट इश्यूज जो हमारे इंडिया में आज मेन प्रॉब्लम है, और हमारे जो यंगस्टर है मेनली उनका टैलेंट जो है वो बाहर जा रहे हैं, बाहर वाली कंट्रीज की तरफ. तो हाउ टू बी आत्मनिर्भर इन केस ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन इंडिया? जैसे मैंने इस विषय को मैंने अपने लेक्चर में कवर किया भी है. तो एम्प्लॉयमेंट की
बड़ी समस्या है। भारत में जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो किस कारण है? क्योंकि जिस तरह का हमें इनपुट चाहिए इंडस्ट्री का, उस तरह का हमारा नौजवान नहीं है। तो उसको स्किल्ड करने के लिए ही भारत सरकार जो है वो स्किल डेवलपमेंट के ऊपर काम कर रही है। अब रोजगार कैसे देगी? कहते हैं कि व्यक्ति की उम्र बढ़ रही है, इतने साल का हो गया, परंतु ये देखो कि क्या उसने अपनी स्किल को बढ़ाया है? क्या अगर वो शिक्षा के क्षेत्र में उसने अपनी शिक्षा के जो जानकारी है वो बढ़ाई है? अगर उसमें स्किल है तो स्किल्ड व्यक्ति के लिए आज भी रोजगार की कमी नहीं है। और जो अनस्किल्ड है उनको स्किल्ड करने के लिए भारत सरकार जो है वो जो है बड़े उसको थोड़ा फोकस कर रही है, ताकि हमारी जो नौजवान पीढ़ी है वो स्किल्ड हो और वो एम्प्लॉयड हो। तो इसके ऊपर काम चल रहा है। जब वो स्किल्ड होंगे तो वैसे ही उनको रोजगार भी मिलेगा और भारत की अर्थव्यवस्था में वो अपना योगदान करेंगे। Thank you, sir, for answering these queries. जी I think और further कोई query नहीं है हमारे पास. ओके So this we come to the end of this webinar. Thank you, Okay. Ram Singh, Dr. Ram Singh, and Dr. Satish Soni for such elaborative and comprehensive presentation. I think participants might have gained a lot by. We are really enlightened with your knowledge and presence. Thank you so much, sir. On behalf of Shaheed Udham Singh Punjab University Constituent College, Guru Har Sahib, I really thankful to. ओके Thank थैंक you, यू वेरी sir. मच। ओके थैंक यू वेरी मच। आप सब Okay. स्टाफ का थैंक यू, सब पार्टिसिपेंट का धन्यवाद जिन्होंने इतनी पेशेंसली से मुझे सुना। थैंक यू वेरी मच। Thank you, sir, for joining with us. ओके थैंक यू। कैन बी लीव नाउ? Yes, कैन sir. आई लीव? Yes, Okay, sir. okay, thank you. ओके ओके थैंक यू। Participants.